Hello everyone, welcome back to my channel R&R की Vision. Today is the first lesson class for learning AutoCAD software. So आज हमारी ये पहली वीडियो पहली क्लास ऑफ AutoCAD software में हम हर चीज़ ब्रीफ में हम सीखेंगे. And as a student मैं जानती हूँ कि when you work for a professional platform like आप कोई कंपनी के लिए काम कर रहे हैं and if you're working over a project it's necessary that there are few things, few basic things जो हर student को पता होना चाहिए. सो मैं आपको हर चीज़ के थ्रू आपको लेके जाऊंगी फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप अप टिल द वेरी एंड स्टेप. इस वीडियो में आपको सब कुछ ब्रीफ सिखाऊंगी, ब्रीफ बताऊंगी कि हम आगे अगली वीडियोस में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट इट्स नेसेसरी दैट कि आपको ये चीज़ पता होना लाजम है because when you get started working it's necessary that you are familiar with all these things because आप वहाँ जाने के बाद it's necessary that people would be expecting you to know each of these things. तो मैं आपको वो सब सिखाऊंगी and at the same time in my upcoming videos I would also go through some flow plans, okay, जो मैं खुद बनाऊंगी आपके साथ starting from the very basic, that is like creating flow plans, finding out coordinates, and also at the same time giving details, section view banana, elevation views banana, and then also I would also teach you some terms जो most of the time obviously हमें पता तो नहीं होता है, but when you just have meetings with clients, जब आपकी meetings होते हैं professionally, they personally prefer using some specific professional terms. किसी ना किसी चीज़ के लिए they prefer using professional terms जो हमें personally पता नहीं होता है. So I would also go through those because it's necessary that कि आपको वो term पता होना चाहिए. For example, like if they ask you to change the height of the jam, you change the height of the architrave, change the height of the skirting, thickness and everything. तो आपको ये पता तो नहीं होता है कि what are all these terms, right? So you need to know each of these terms so that when they say you to change the size of it, the thickness of it, तो आप फौरन आप उस वक्त समझ कर आप कर सकते हो changes, right? So this is something very important. And at the same time मुझे आपको ये भी बताना था कि हम लोग sections and elevations ज़रूर बनाएंगे इसमें because that is something which is very important. And AutoCAD software ऐसा होता है कि they help you give more details over your project. अब you would say कि Revit तो और भी एडवांस है, आपको वहाँ पर सेक्शंस एलिवेशंस बनाना तो लाजिम होता नहीं है. सो द बेनिफिट ये होता है ऑटोकैड में है कि ऑटोकैड इज़ गुड फॉर गिविंग डिटेल्स. एंड जब भी आप कोई भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे चले जाओ दे वुड फर्स्ट एक्सपेक्ट यू टू वर्क ओवर ऑटोकैड बिकॉज वो डिटेलिंग्स देने में काफ़ी अच्छा होता है. रेविट ऑब्वियसली इट्स द बेस्ट बिकॉज वहाँ पर आपको सिर्फ फ्लो प्लान बनाना होता है, सेक्शंस एलिवेशंस वो खुद ही बना देता है, isn't it? But AutoCAD में it's totally different. AutoCAD में आपको हर एक चीज़ पे be it sections, be it elevations, be it any sort of detailings, वो आपको खुद बनाना होता है. तो उसमें एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि आप हर एक किस्म की डिटेल्स आप उसमें दे सकते हो when you're working with AutoCAD. So that was the difference between these AutoCAD and Revit. Okay, so हम अब आगे बढ़ते हैं. When you just get आगे बढ़ते हैं with knowing what is important and what is not important and किस तरह से project start होता है and what are the things that you need to know when you're working professionally. So first thing, when you just get started with any of your projects, so it's necessary कि आप obviously site visit पे जाते हैं and you need to take a look over the land, you need to take a look over the surroundings, चाहे वो रोड हो, आपके पास साइड में नेबर्स कौन हैं और नेबर्स नहीं है तो इफ इज इट अ बैरन लैंड या आपके पास कोई फैक्ट्री है बाजू और व्हाट इज इट लाइक, आपको वो एनवायरनमेंट देखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू नोटिस ओवर द वेदर कंडीशंस देयर बिकॉज every country and every state has a different weather. Like आप कोई desert area में चले जाओ तो वहाँ पर weather is totally different, but आप whereas like if you go to some other country जहाँ पर snowfall होती है वहाँ का नोटिस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जहाँ रेनफॉल है वहाँ का नोटिस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है बिकॉज एज एन आर्किटेक्ट आपकी ज़िम्मेदारी यही होती है कि जो मटेरियल्स आप यूज़ करोगे, जो टेक्निक आप यूज़ करोगे, एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन द वेदर एंड ऑल्सो योर सराउंडिंग्स. ठीक है, सो ये चीज़ पहली बात तो आपको नोट डाउन करना लाजम है.
नाउ सेकेंड थिंग ये है कि व्हेन यू जस्ट टेक अ लुक ओवर द साइट, आपको फर्स्ट थिंग जो आपको टास्क दिया जाता है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट्स। मतलब कि आपके पास एक लैंड है एंड उसी लैंड में आपको आपका घर बनाना है। ओके, सो आपको साइड्स में देखना होगा कि डू यू हैव अ बैरन लैंड टुवर्ड्स योर साइड्स, मतलब आगे पीछे सामने जो भी है आपके पास बैरन लैंड है, या इज देयर ए हाउस ऑलरेडी बिल्ड अप ओवर देयर। हाउस हो या मॉल हो या एनी सॉर्ट ऑफ शॉप हो, कुछ है वहाँ पर या नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ओके, सो इफ आई जस्ट टेक अ प्लॉट, ओके, और मेरे तीनों साइड पीछे एंड टू साइड्स वहाँ पर कुछ ना कुछ बना हुआ है, सपोज लाइक 3 houses, सो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। आई डोंट रियली नीड टू कम अप विथ फाइंडिंग कोऑर्डिनेट्स बिकॉज मेरे पास उतना ही लैंड है एंड यू नीड टू जस्ट गो फॉर कंस्ट्रक्शन एंड दैट्स इट। बट अगर इफ इन केस आपके पास completely barren land है एंड that is like बीच में, बीच ऑफ द लैंड आपकी वो प्लॉट है एंड यू नीड टू बिल्ड अप ओवर, तो उसके लिए एक आर्किटेक्ट को इट्स नेसेसरी कि दे शुड नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट। तो वो कोऑर्डिनेट्स मालूम करना to get the side boundaries, okay, it's very necessary। तो आपको जैसे coordinates मिलते हैं, आप पहले एज एन आर्किटेक्ट यू टेक दोज कोऑर्डिनेट्स एंड आप मार्क करना स्टार्ट कर देते हो। पहले आप एक बाउंड्री बना लेते हो, ओके, बिफोर गोइंग इनटू कंस्ट्रक्टिंग और डिजाइनिंग द हाउस। ओके, फ्लोर प्लान बनाने से पहले फर्स्ट जो स्टेप होता है इट इज टू मार्क द कोऑर्डिनेट्स। ओके, ये बात तो क्लियर होगी। You need to get started making all these flow plans। उसमें आपको देखना होता है कि every what are the requirements of the client। okay, अगर एक फ्लोर है, एक घर बनाना चाह रहे हैं, so do they want like duplex house or they want, what do they want, like आपको पहले वो चीज़ समझना लाजिम होता है, ठीक है। You need to understand what they are personally looking out for। एंड ये कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो आपको फाइंड आउट नहीं करना पड़ता है। वी आर पीपल हु गो फॉर सर्वे ऑन दिस पर्टिकुलर प्लॉट। वो लोग ये चीज़ सर्वे करके लाते हैं, ओके, टू गेट द पॉइंट्स एंड आई विल शो यू अ पिक्चर जहाँ पर लोग सर्वे कर रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ सर्वे टेक्स प्लेस एंड दे कम अप एंड गिव यू दिस पॉइंट्स एंड वो पॉइंट्स आप ऑटोकैड में डाल के यू गेट स्टार्टेड विद योर प्रोजेक्ट। ओके, हमेशा यू नीड टू मेक श्योर कि कोऑर्डिनेट्स इज द मस्ट। ओके, कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करो इट्स नेसेसरी टू नो द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स इज अ मस्ट। अगर इफ इन केस फॉर एग्जांपल अगर आपके सर्वे जो करने जा रहे हैं एंड दे डोंट कम एंड गिव यू द कोऑर्डिनेट्स, you can always get started with the coordinates 0, 0, 0। ठीक है, 0, 0, 0 से स्टार्ट कर लीजिए आप कोऑर्डिनेट्स डाल के एंड यू कैन जस्ट गो फर्दर एंड जब भी वो लोग कोऑर्डिनेट्स देंगे यू कैन easily put those coordinates that is given by them and shift the plan a little with it। ठीक है, so ये हो गया and then next is moving on with the grids। Grids is something very important। okay, it just gives you an idea कि हर एक रूम का साइज कितना होता है, all those measurements, the accuracy जो होती है that is done using the grids। ठीक है, grids के भी जो डिटेल्स है मैं आपको वो भी बताऊंगी, उसमें लेबलिंग किस तरह से किया जाता है एंड लेबलिंग में भी there are few things जो आपको ख्याल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो मैं आपको वो भी ग्रिड्स किस तरह से बनाते हैं मैं वो भी बताऊंगी एंड दिस ग्रिड्स आपको नहीं करना पड़ता है, दिस इज अगेन डन बाय द स्ट्रक्चर पीपल। ठीक है, so that is about it and then we also have U-shaped standards that we need to go through। okay, so मैं ये भी बताऊंगी कि what is U-shaped standards that you need to stick to। it is something very simple। it's like आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें they have followed the U-shaped standard। so it basically kind of refers to design layout with the building or a structure they are arranged in a U-shaped। okay, जब आप ऊपर से देखते हैं तो it is arranged in a U-shape। so आप इसमें भी देख रहे हो आप कि इसमें the above part of it it is arranged in U shape। ठीक है, so that is like the basic thing because कभी clients के ये needs होते हैं कि we want to go with the U shape standards। so वो चीज़ का भी आपको ख्याल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। now then comes the labeling of the floors because आपके पास multiple floors होते हैं। okay, so you need to know how you are labeling them because this is something which is very important। labeling it gives the client a good idea कि हाँ ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, इस ग्राउंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, जो भी है यू कैन एक्चुअली गिव दैट। सो अब लेबलिंग किस तरह से करोगे आप, इफ़ यू हैव अ ग्राउंड फ्लोर तो आप किस तरह से लेबल करोगे, G01। ओके है, अगर फर्स्ट फ्लोर है तो F01, सेकेंड फ्लोर है तो S01 एंड इफ इट्स अ टिपिकल फ्लोर प्लान देन यू जस्ट गिव अ लेबल एज T। ठीक है,
What is a typical floor plan? I think I have said that in my previous videos as well, पर मैं यहाँ पर फिर दोबारा कहूँगी. Typical floor plans are those जो कि अगर आप suppose एक building बना रहे हो, okay, ground floor plan looks totally different. Floor it looks pretty good, and यही floor you want the same pattern, the same design to be followed for the second, third, fourth, fifth floor. तो उसमें क्या करोगे आप? You won't just keep repeatedly creating new floor plans over there. You say that कि ये typical floor plans है, मतलब ये सारे second, third, fourth, fifth जो है ये these floor plans are quite similar to that of the first floor. ठीक है. So आपको ये make sure करना है कि they are एग्जैक्टली आइडेंटिकल. ठीक है, एक भी वॉल यहाँ से निकल गया है फर्स्ट फ्लोर से एंड वहां पर है, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टिपिकल फ्लोर प्लान. इट शुड बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल. ठीक है, ये एक भी चीज इधर की उधर नहीं होनी चाहिए, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द वॉल्स. ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द डिटेल्स ऑफ द फ्लोर प्लान, वो सब चेंज नहीं होना चाहिए इफ यू आर कंसिडरिंग दैट एज अ टिपिकल फ्लोर प्लान. ठीक है. Now I would also in the upcoming videos teach you everything कि आपको sheets कैसे बनाना है. Sheets बनाना is a very easy task. ठीक है. It at times looks very easy, but at times क्या हो जाता है कि you don't really know how to work over it. Okay, it seems to be very easy, but आप कहीं ना कहीं you just mess up some other way. ठीक है. तो अब आपको I'll teach you how to make groups, how to make layers, and layers क्यों important होते हैं, and then how to make sheets. Okay, and उसमें भी काफ़ी सारे settings होते हैं in order to come up with a beautiful looking sheet. And usually क्या होता है, आप sheets ही submit करते हैं towards your client, and अगर construction के लिए भी आप दे रहे हो तो they take sheets along with them, not like the complete AutoCAD along with them, right? तो वो तो possible है नहीं. So you will have to provide them with good looking sheets. अब सो इट्स नेसेसरी कि आपको ये समझना लाजिम है कि व्हाट आर द नीड्स ऑफ द क्लाइंट. आपको पूरा जो डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं फ्रॉम द क्लाइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कितने मंथ्स के लिए आपको ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना होगा. उसके बाद यू ऑल्सो नीड टू कम अप विद बजटिंग. यू नीड टू कम अप विद एवरीथिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं क्लाइंट्स के. And it is necessary to have a good conversation with them. You need to come up with a good plan with what they are truly expecting from you. Okay, because this is necessary because you need to apply some minimum area requirements for each and every room. कौन से rooms चाहिए आपको घर में, कितने rooms चाहिए, and personally आप definitely you can come up with ideas too, but आपको ये make sure करना है at the end of the day कि it should meet the requirements and the needs of your client. ठीक है. So अभी usually when you get started आप basic चीज़ों से start करते हैं, like if you are given a floor plan तो आप you know 2 से 3 फ्लोर प्लान्स बनाते हैं. ओके, एंड यू प्रेजेंटेड नियर योर क्लाइंट, एंड उन्हें जो पसंद आता है, कभी क्या होता है फर्स्ट नहीं पसंद आता है, सेकंड नहीं पसंद आता है, दे जस्ट लव द थर्ड वन एंड दे आस्क यू टू मूव फॉरवर्ड. बट मोस्ट ऑफ द टाइम दैट्स नॉट द केस. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि कभी कुछ चीज़ें फर्स्ट फ्लोर प्लान से पसंद आती है, कुछ चीज़ें सेकंड से पसंद आती है, कुछ चीज़ें थर्ड से पसंद आती है. सो यू नीड टू group all of those needs. जो भी पसंद आ रहा है उन्हें वो group करना होगा, and you need to make a new floor plan. Okay, and definitely you need to present that new floor plan near them. अब उसमें भी they wouldn't be liking few things, या वो चाहेंगे कि ये भी ऐड करो, वो भी ऐड करो. So you need to go through that as well. ठीक है. अब वो फाइनल होने के बाद you get started making or designing this floor plan. Okay, and that is like the basic, or maybe like the first stage of your work as an architect. So designing to ho gaya, phir uske बाद you need to give your minimum requirements of area for each and every room that you are giving inside that house. ठीक है. So ये चीज़ें हैं ना different stages पे होते हैं. Okay, and you don't really have just the architect working. You have your electrical, mechanical. You also have different people working over this. Okay, so electrical के लिए आपको मेक श्योर करना पड़ता है कि यू हैव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विद देम, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है आपको ये बताना होता है कि इफ़ आई हैव लाइक एन इलेक्ट्रिकल रूम, ओके, तो उसके लिए डोर कितना होना चाहिए. डू दे वांट सिंगल डोर और ए डबल डोर. वो इलेक्ट्रिक वालों से बात करना होता है आपको, इलेक्ट्रिकल टीम से, कि what would be the best fit for this house. तो उस हिसाब से आपको फर्दर डिज़ाइन करना पड़ता है.
ठीक है। सो बिकॉज इलेक्ट्रिकल रूम्स में क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोना बी द शाफ्ट साइज। ओके, अगर आप उनके हिसाब से उनके साथ कोऑर्डिनेशन आप अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो आपको आखिर में क्या होगा कि यू एंड अप मेकिंग थिंग्स बट लेटर ऑन यू विल हैव टू चेंज द एंटायर प्लान। आपको नहीं चाहिए वो आपकी मेहनत हो, डबल मेहनत हो। सो व्हाट यू पर्सनली डू इज़ आप पहले कांटेक्ट करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग एंड ऑल एवरी टीम से, यू हैव अ मीटिंग विद देम, यू एक्सप्लेन what are the requirements of the client, पूरा एक्सप्लेन करते हैं, एंड देन इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वाले दे जस्ट कम अप विद देयर आइडियाज़ एंड दे से कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, हमें सिंगल डोर बनाना है, तो आप प्लीज़ इतना सिंगल डोर बनाइए, ये साइज़ का बनाइए। आई वांट लूवर्स, तो वो लूवर्स भी चाहिए मुझे। ओके, ये चीज़ें होते हैं। शाफ्ट साइज़ मुझे इतना चाहिए, तो प्लीज़ उतनी जगह आप हमारे लिए बना दीजिए सो दैट वी कैन जस्ट स्टार्ट वर्किंग ओवर दैट शाफ्ट। ओके, एंड जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना बड़ा शाफ्ट होगा। ओके, उतनी बड़ी शाफ्ट बनेगी आपकी ये बिल्डिंग में। ओके, सो एंड टॉयलेट्स में भी most of the cases में आजकल ये हो गया कि you do have shaft over there. So it depends upon the size of the building as well. Okay, so अगर suppose काफी छोटा घर है, obviously you can't really have a shaft inside a small house, right? Like a medium size house मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? So उस केस में क्या करेंगे, you have a pipe cheese. Okay, what is that? It's like small जो washrooms होते हैं, you have like this pipe cheese, which is like around 200 to 2 into 200 mm के होते हैं, या तो 300 to 300 mm के होते हैं, ठीक है? मैं आपको वो भी बताऊंगी। So then next we have to study all of these things. आपको स्केल क्या रखना होता है, ओके, ये भी मालूम करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये छोटे छोटे डिटेल्स जो होते हैं दे मे कॉस्ट यू अ लॉट इफ़ यू जस्ट complete the task, complete the entire project without even taking care of it. तो ये चीज़ें हैं ना, it's very necessary, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? Now scale आपका usually होता है 1:15, okay, or height of your text, height of the the text जो होता है वो कितना होना चाहिए, so it's usually 2.5 to 3, maximum 3 मैं बताऊंगी। so आपका वो scale पे depend होता है, and most of the time the scale that we personally prefer using is 1:15, ठीक है? when it comes to units किस पे काम करें, because काफ़ी सारे लोग कभी फीट्स पे काम करते हैं, कभी mm में, कभी मीटर्स में। तो यू नीड टू डिसाइड कि वो किस यूनिट में काम करना है, एंड वही यूनिट पे यू विल हैव टू स्टिक टू। ओके, बिकॉज यूनिट चेंज होगा तो फिर एवरीथिंग इज गोना चेंज, ठीक है? सो अगर आपका स्मॉल प्लान है, छोटा सा प्लान है, तो यू कैन गो विद mm, ओके, दैट इज मिलीमीटर में काम कर सकते हैं आप। इफ इट्स अ ह्यूज प्लान, गो फॉर मीटर्स, ठीक है? देन मैं आपको इंशाल्लाह ये भी सिखाऊंगी कि हाउ टू वर्क विद कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स किस तरह के होते, किस तरह से हमें करना चाहिए। आई वुड ऑल्सो मोस्ट प्रोबब्ली गिव यू एन एग्जांपल कि हम किस तरह से हम ये कोऑर्डिनेट्स फिक्स कर सकते हैं, ओके? I hope you have loved watching this brief intro video for AutoCAD software. If you have any questions, any comments, or any suggestion regarding any video or regarding any topics, you can definitely put that in the comment section below. I would definitely come up with those videos as well. Please share my channel with all those students. It's going to be quite helpful for them. Do subscribe my channel and do like my videos. I'll meet you all in my next video. Take care. Bye bye.